Hello, today we will be starting with our third small sample test, which is chi-square test. In my previous videos, I have created the videos on hypothesis testing, basic terminologies, then t-test. I have covered all the types of examples, then f-test, in which also I have covered all the types of examples, and from now we'll be starting with our third small sample test, which is chi-square test. Before we start with the examples, I would like to discuss with you some of the properties of chi-square distribution. So let's start with the chi-square test. The chi-square test helps to determine whether there is a notable difference between the normal frequencies and the observed frequencies in one or more classes or categories. मतलब यहाँ पे chi-square test में we are dealing with numbers, that is we are dealing with frequencies. तो जब भी क्वेश्चन में आपको numbers दिए हैं then it is based on chi-square test. This is how you will identify the question. Generally question में mentioned होता ही है that use chi-square test, but if नहीं mentioned है then numbers are given, frequencies are given, then you will be using chi-square test. हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? तो वी डिटरमाइन द नोटेबल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. Chi-square is denoted using this symbol. The general formula that is used to find chi-square is summation f naught minus fe whole square divided by fe. F naught, which means the observed frequencies, and fe is the expected frequencies. Now in chi-square test, we'll be dealing with two types. One is goodness of fit and another one is independence of attributes. दो टाइप के टेस्ट होते हैं. One is goodness of fit and second one is independence of attributes. तो मैं सारे ही एग्जाम्पल्स कवर कर लूँगी. Then PDF की बात कर लेते हैं, which is probability density function for chi-square distribution is given using P of chi-square equal to y naught chi-square raised to nu minus 1 divided by 2 into e raised to minus chi-square by 2. This is how we give the probability density function of chi-square distribution. ये आपको MCQ के लिए सिर्फ याद रख लेना है. Now nu is the degrees of freedom, which we already know कि nu हम लोग degrees of freedom बोलते हैं because आगे भी हमने t test f test में किया ही है use. Then y naught जो है that is my constant and this constant depends on the degrees of freedom. मतलब ये जो constant है y naught वो nu पे depend करता है. अभी properties discuss कर लेते हैं. तो जो सबसे पहली property है that is chi-square test is always positively skewed. chi-square test जो है मेरा that is always positively skewed. मतलब नेगेटिव साइड पे कुछ नहीं होगा. It will be always positively skewed. That means जो chi-square की जो लिमिट होगी या तो हम लोग बोल सकते हैं रेंज, or we can say that chi-square lies between 0 to infinity. That is you need to remember it is always positively skewed. मतलब लिमिट क्या हो जाएगी मेरी 0 से लेके infinity. Now before I discuss the second point, let's just focus on this diagram. Now here you can see three curves I have drawn. I'll label it one by one. Now this curve shows degree of freedom equal to 1. Then this one is for degree of freedom equal to 3. And this one, the third one, is for degree of freedom equal to 5. Now what we can observe from these curves that chi-square distribution जो होता है that approaches the normal distribution when the degree of freedom increases. मतलब जैसे जैसे मेरी न्यू की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी
जैसे जैसे मेरे न्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे दिस कर्व विल स्टार्ट टू अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल कर्व. इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द मीन. इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. ये कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. एंड एज आई सेड, जैसे जैसे मेरे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी द कर्व विल अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हेयर फॉर डिफरेंट न्यू the shape of the curve is different. मतलब वो हमें डायग्राम में से दिख ही रहा है दैट अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मेरा जो कर्व शेप जा रहा है दैट इज़ डिफरेंट. तो ये दो चीज़ें और याद रखनी है आपको. देन द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज कि जैसे जैसे मेरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही मेरी काई स्क्वायर वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. So you need to remember that chi-square value increases with increase in degree of freedom. Then fifth property says 2 times the number of degrees of freedom is equal to variance. अभी ये जो point है that is very much important for your MCQs. So you need to remember कि जो मेरा variance होता है that is equal to 2 into nu. या तो मैं क्या बोल सकती हूँ that my standard deviation is equal to under root of 2 nu. फिर ये सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. तो द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू मीन डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज मीन इज इक्वल टू न्यू एंड सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 न्यू. सो दीज आर ऑल द 6 प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू रिमेंबर. आफ्टर दैट नाउ विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल based on chi-square test, goodness of fit. Theory predicts that the proportion of beans in the 4 groups ABCD should be 9:3:3:1. In an experiment among 1600 beans, the numbers in 4 groups were 882, 313, 287 and 118. Do the experimental results support the theory? पहली बात कि यहाँ पे it is not mentioned we need to use chi-square test, but as I told you कि क्या लिखा है, numbers लिखा है. अगर numbers word नहीं भी यूज़ किया है तो मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे numbers दिए गए हैं, मुझे कुछ frequencies दी गई है. That means कि मुझे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होगा, chi-square test. So this is the basic thing that you need to know before you are able to solve the examples based on chi-square test. अभी ये पता चल गया, उसके बाद मेरे steps तो सेम ही रहेंगे. Here 4 groups are given, इसका मतलब n equal to 4 हो जाएगा. Then starting with our first step which is null hypothesis denoted using H naught. क्या लिखना है मुझे कि the proportion of the beans in the 4 groups ABCD should be 9:3:3:1. जो मुझे फर्स्ट सेंटेंस में दिया है क्वेश्चन के वही सेम चीज़ मुझे लिखनी है नल हाइपोथेसिस में. अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो H1 वो क्या हो जाएगा कि द प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन 4 ग्रुप्स ABCD इज़ नॉट 9:3:3:1. chi-square टेस्ट में आपको कोई पैरामीटर्स कंपेयर करके नहीं दिखाने होते हैं. यू जस्ट नीड टू राइट द सेंटेंस. Whatever is asked to you in the question, from that only you will create your sentence and you will write it in your null hypothesis. और alternative hypothesis जो होगा वो क्या हो जाएगा, null hypothesis का complementary. तो इतना हमारे steps हो गए. उसके बाद third step which is level of significance. क्योंकि question में mention नहीं है alpha, so you will take alpha equal to 0.05 and you will write it as assumption. अभी टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं. Then you need to create a table like this. अभी इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कि फ़र्स्ट कॉलम का टाइटल मैंने अभी रखा है ग्रुप, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 ग्रुप्स दिए हैं विच इज़ ABCD. सो दैट्स वाई आई नीड टू कीप माई फर्स्ट कॉलम टाइटल एज ग्रुप. और मैंने ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ जो ली है दैट इज़ ABCD. देन सेकेंड कॉलम टाइटल इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड थर्ड कॉलम टाइटल इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोग F0 से डिनोट करेंगे
and expected frequencies को will denote it using FE. Second thing that you need to remember is कि जो भी frequencies मुझे question में दी होगी that will be my observed frequencies. Again I'll repeat, जो भी frequencies मुझे question में दी हुई है that is known as my observed frequency. So observed frequency मेरी question में मुझे दी है 882, 313, 287 and 118. अभी second thing that is given to me in the question is ये एक proportion दे दिया है which is 9:3:3:1. And third thing given to me is 1600 beans. तो इसका यूज़ करके हम लोग FE फाइंड करने वाले हैं. So just pay attention to that. All you need to do is first thing ये proportion का total करिए. तो proportion का total आ जाएगा 9 + 3 + 3 + 1 which is equal to 16. Individual proportion divided by total proportion into total number of beans. Again I'll repeat, individual proportion upon total proportion into total number of beans. ऐसे करके हम लोग expected frequencies find करेंगे. So first one आएगी 9/16 into 1600 which is 900. देन थर्ड कॉलम की बात कर लेते हैं. तो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा F0 - FE होल स्क्वायर अपॉन FE. अभी F0 - FE होल स्क्वायर, F0 है मेरा 882, FE है मेरा 900, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900. तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ. 882 - 900 उसका करना है मुझे होल स्क्वायर, दैट इज़ -18 का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ 324 एंड डिवाइडेड बाय 900. सो ये करते ही मुझे वैल्यू मिल रही है 0.36. इसका मतलब थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू विल बी 0.36. देन सेकेंड रो पे आते हैं. सेकेंड रो की अगर बात करें तो सेकेंड रो में होगा 3/16 into 1600 विच इज़ इक्वल टू 300. 3/16 क्यों लिया, क्योंकि दूसरा बी का जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल प्रोपोर्शन दैट इज़ 3, उसको डिवाइड करना है टोटल प्रोपोर्शन से इनटू टोटल नंबर ऑफ बीन्स. अभी इसकी बात करें तो इट विल बी F0 - FE का होल स्क्वायर अपॉन FE. F0 है मेरा 313, FE है मेरा 300 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300. On solving this you'll get the answer as 0.56. तो थर्ड कॉलम सेकेंड रो मेरी वैल्यू आ गई 0.56. जैसे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो की वैल्यू मेरी थी 0.36 और बी के लिए वैल्यू आ रही है थर्ड कॉलम की 0.56. वैसे ही अभी सी के लिए फाइंड करते हैं. तो सी के लिए अगेन द थर्ड प्रोपोर्शन इज़ 3. तो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन अपॉन टोटल प्रोपोर्शन इनटू टोटल नंबर ऑफ बीन्स. आंसर आ रहा है 300. अभी मैं आपको वापस कैलसी में कर दिखा देती हूँ. सो इट विल बी F0 - FE. F0 है मेरा 287 माइनस FE आया है मेरा 300 विच इज़ -13 का स्क्वायर हो जाता है 169 एंड देन डिवाइडिंग इट बाय 300. सो वी गेट द आंसर एज 0.56. देन डी के लिए बात करते हैं. तो डी के लिए इंडिविजुअल प्रोपोर्शन 1 है, टोटल प्रोपोर्शन इज 16 and total number of beans are 1600. So 1/16 into 1600. So we get it as 100. And on solving this we get 3.24. कैसे आएगा, तो 118 minus 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. इसके बाद टेबल में आपको एक लास्ट रो बना देनी है. उसमें आप लोग लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ F0 - FE होल स्क्वायर अपॉन FE. एज आई हैड सेड कि दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर. सो काई स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारी जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे हम लोग. समेशन ऑफ F0 - FE होल स्क्वायर अपॉन FE. नाउ F0 - FE होल स्क्वायर अपॉन FE मतलब ये सारी चारों वैल्यूज़ हमें ऐड कर लेनी है.
So it will be 0.36 plus 0.56 plus 0.56 plus 3.24. Now on adding these values, we get it as 4.72. So chi square मतलब टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू आई मेरी दैट इज़ 4.72. नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ स्टेप विच इज़ क्रिटिकल वैल्यू. तो क्रिटिकल वैल्यू की अगर बात करें तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यू इक्वल टू n-1. अभी काई स्क्वायर में क्रिटिकल वैल्यू का जनरल सम्स जो होंगे उसके लिए ये इक्वेशन रहेगा. बट बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी है या तो पॉइजन्स फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जब फिट करना आता है तब इक्वेशंस चेंज. जैसे कि बाइनोमियल की बात करूँ तो इक्वेशन विल रिमेन द सेम फॉर फाइंडिंग न्यू, बट पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेंज होगा. नाउ हियर न्यू इज़ इक्वल टू n-1 दैट इज़ 4 - 1 3. अभी टेबल है मेरे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसे बोलते हैं. तो न्यू इक्वल टू 3 के लिए मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है. मैं कहाँ पे फाइंड करूँगी? तो जिस कॉलम में 0.05 लिखा है वहाँ की वैल्यू देखनी है मुझे. सो द वैल्यू इज़ 7.81. दैट इज़ chi square 0.05 for nu equal to 3 it is 7.81. This value we have obtained from the chi square distribution table. Now my final step. अभी फाइनल स्टेप की बात करें तो टेस्ट स्टेटिस्टिक काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 4.72 और काई स्क्वायर 0.05 कितना आया है 7.81. दैट मीन्स कि काई स्क्वायर इज़ लेस देन काई स्क्वायर 0.05. इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. दैट इज़ जो सेंटेंस हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा था वही सेम लिख लेना है वापस. The proportion of the beans in the 4 groups A, B, C, D should be 9:3:3:1. So ये एक जनरल क्वेश्चन हमने काई स्क्वायर टेस्ट का सॉल्व किया. इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन either we need to fit a Poisson distribution or a binomial distribution or normal distribution, and then we'll see some examples based on independence of attributes. For that I'll be creating separate videos. Thank you.